Hello, children. Now we have to continue our miscellaneous exercise of chapter number 11, three-dimensional geometry. Okay, so here I'm going to solve question number 15. Okay, so in question number 15, we have to find the equation of a plane which is passing through the intersection of the plane. So first plane is given to us. This is the equation of the first plane, that is I plus j plus k is equals to 1, and second equation is r dot 2i cap plus 3j cap minus k cap is plus 4 is equal to 0. Okay, these two equations are given to us and we have to find out the equation of that plane. हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है. तो बच्चे आप इसको पहले साइन फॉर्म में लिखोगे, इस वन को उधर लेके आओगे तो आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी r डॉट आई कैप जे कैप के कैप minus 1 equals to 0. This is equation number 1 and this is your equation number 2. So the equation of a plane passing through the intersection of the given two planes is, ठीक है. हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल रहे हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. तो बच्चे उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? दिस होल इक्वेशन -1 plus lambda this whole equation is equals to 0. Okay, so this is the equation of a plane which is passing through the intersection of the planes. Okay, so after that r vector you can take common and here you will get I plus j plus k minus 1 plus lambda 2i cap 3j cap minus k cap plus 4 ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 0. मैंने क्या करा, मैंने r वेक्टर को मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. इट कैन बी रिटन एज 1 plus 2 lambda I cap plus j cap 1 plus 3 lambda plus k cap 1 minus lambda and 1 minus 1 plus 4 lambda is equals to 0. Okay, and here this r vector. Now अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियो निकालूं बेटे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन क्या आएंगे? 1 plus 2 lambda कॉमा 1 plus 3 lambda कॉमा 1 minus lambda. ये इसके आगे डायरेक्शन रेशियोज इस वाले प्लेन के. ठीक है, अब ये प्लेन बेटा आपके पैरेलल है एक्स एक्सिस के. अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो उसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 1 0 0. ओके, द प्लेन यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता, द प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द डायरेक्शन रेशियोज आर दिस. ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं, ये दोनों बच्चे परपेंडिकुलर होंगे आपस में. ठीक है, तो यानी कि दिस a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन होती है ना परपेंडिकुलर के लिए, तो ये कंडीशन आपने अप्लाई करनी है यहाँ पर. तो
This is your A1, this is your A2, this is your B1, this is your B2, this is your C1, this is your C2 इंटू 1 प्लस बाकी दो अदर्स आएंगे बेटा, वो जीरो ही आएंगे. तो बस मैं फर्स्ट स्टेप पे शो कर रहा हूँ. So when you will solve this whole would be 0 equals to your lambda would be minus 1 by 2. So you have to put this value of lambda in this equation. Okay, in this equation you have to put the value of lambda and you will get the required answer, required equation of the plane. Okay, so this is your work. Just you have to put the value of lambda and you have to simplify it, and you at last you will get the value. You will get the equation of the plane. Fine. So this is how you can solve your question number 15. Fine. Question number 16 is your homework. So question number 17 I'm going to solve. Okay. So question number 17 is very important. So that question I'm going to solve. You can pause the video to note down the question number 15. Okay. Now see. Question number 17. Find the equation of a plane which contains the line of intersection of the plane this and this, and which is perpendicular to the plane this. So equation of the two planes is given to us. R dot 1 plus 2j plus 3k minus 4 equals to 0. This is your first equation of a plane. And this is the second equation. This is the second equation of the plane. Okay, so हमें जो just plane की equation निकाली वो इन दोनों के intersection से पास हो रहा है बेटा. तो same concept आपको apply करना है. This whole equation statement भी लिख देना. The equation of a plane passing through the intersection of plane 1 and 2 क्या होगा बेटा. R को हम बाहर रख देते हैं कॉमन लेके. I plus 2j minus 3k minus 4 plus lambda. This 2i cap plus j cap minus k cap plus 5 is equal to 0. ठीक है. मैंने एक स्टेप यहाँ पे मिस करा, वो r पहले आप जब दिस इक्वेशन प्लस लैम्डा दिस इक्वेशन लिखोगे तो r आप कॉमन लोगे, तो मैंने r कॉमन स्टार्टिंग में शो कर दिया. कंफ्यूज मत होना उससे. ठीक है. अब बेटा आपको वही इसको सिंप्लीफाई करना है. तो r वेक्टर डॉट this is your 1 plus 2 lambda I cap plus j cap 2 plus lambda minus k cap 3 plus lambda minus 4 plus 5 lambda is equal to 0. On simplification you will get this equation. This is your equation number 3. Okay, now one more condition is given to us. Wait. The given plane is perpendicular to this plane. आपका जो थर्ड इक्वेशन आपकी आ रही है, ये जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है. अगर बेटा इसके परपेंडिकुलर है ये प्लेन, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं
और इसके डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं, ये एन है, इसका नॉर्मल वेक्टर है ना ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, देखो कैसे, इसका डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं 1 + 2 लैम्डा इंटू इसका डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट आ रहा है ये 5 प्लस your b1 is 2 plus lambda, your b2 is 3 plus, actually it is not plus, it is -3 minus lambda into -6, that is equals to 0। ठीक है, ये आएगा आपका। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करोगे लैम्डा आपको मिलेगा 7/19। ठीक है, लैम्डा आपको 7/19 मिलेगा। इस 7/19 को इक्वेशन में 3 में पुट कर देना। ठीक है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आप उसको वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म में दोनों में दिखा सकते हो। ठीक है, इस लैम्डा की वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट कर देना, यू विल गेट द फाइनल आंसर। Got it? So this is how you can solve question number 17। अगर आप इस लैम्डा की वैल्यूज में पुट करोगे ना तो आपको वेक्टर इक्वेशन मिलेगी। आर के प्लेस पर ये वेक्टर पुट कर देना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। जब आप ये लैम्डा की वैल्यूज में पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको ये पूरा सिंप्लीफाइड मिल जाएगा। उस आर के जब आपको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो, आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आर के प्लेस पर ये वेक्टर पुट कर देना और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, सो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 17 के बाद सारे जितने भी क्वेश्चन है इसके, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का। इस पॉइंट को लेट कर रहे हैं, ए नाम दे रहे हैं, लेट ए बी, पॉइंट ए है, और आपका जो प्लेन है वो एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, आर डॉट टू आई कैप, आर इज इक्वल टू, एक्चुअली दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। प्लेन की बेटा हमें गिवन इक्वेशन आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू वाई। ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, वेक्टर इक्वेशन। ये हमें प्लेन की वेक्टर इक्वेशन गिवन है। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। पहले हमें इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है कि प्लेन और ये लाइन है और ये प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो निकलेगा उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो जैसे हम इंटरसेक्टिंग निकालने के लिए दो इक्वेशन हमें गिवन थे, हम उनको सॉल्व करते थे ना। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस आर की वैल्यू यहाँ पे इस आर के प्लेस में पुट कर रहा हूँ, तो बेटा आपका आएगा थोड़ा इस आर को मैं सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ फ्रॉम 1। इस पहले आर को सिंप्लीफाई कर देते हैं। आर इज इक्वल्स टू 2 + 3 लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप 4 लैम्डा -1 प्लस के कैप 2 + 2 लैम्डा। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैंने एक्चुअल में 1 को ही मैंने सॉल्व करा है। ठीक है, तो मैं इस आर की जगह पे ना इस आर के प्लेस यहां पर पुट कर रहा हूं 2 के अंदर। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इस 3 को मैं 2 में पुट कर रहा हूं, आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2 + 3 लैम्डा आई कैप 4 लैम्डा -1 प्लस के 2 + 2 लैम्डा, ये आ गया, डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 5। ओके, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो बेटा, 2 + दिस इंटू 1
2 प्लस 3 लैम्डा ही आएगा, माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5। ये आपका आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको लैम्डा 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे लैम्डा 0 मिलेगा। इस लैम्डा 0 को आप यहाँ पे 1 पे पुट करो, पुट लैम्डा इक्वल टू 0 इन 1, तो आपको r मिलेगा बेटा। r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया ना। तो आपको लाइन की इक्वेशन ये मिल गई, यानी कि दोनों जो लाइन और प्लेन, जो ये लाइन और ये प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे कर रहे हैं, 2, -1, 2, है ना। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से मिल गए पॉइंट। अब इस पॉइंट का इसको नाम देते हैं बी, लेट बी। और ए पॉइंट आपको गिवन है, तो ए बी डिस्टेंस निकाल दो, लगा दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर, अंडर रूट x2 माइनस x1, 2 माइनस -1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस -1 माइनस प्लस 5, तो ये आपका -1 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही 2 प्लस 10, इसको सॉल्व कर देना बेटा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ये डिस्टेंस ही तो निकालना था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके चिल्ड्रन, और बेटा अभी यहीं तक ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइन, बाय बाय, टेक केयर।